Good evening, everyone. Yine so what is the I hope screen or voice proper hai. Uh, to start with, I'll introduce you all to myself. I'm Sneha Singh, Derivative Research Analyst at Ancient Cooking. So today we have a webinar on the topic option strategies. So we will cover a few strategies which you can do in different market scenarios. These are the basics one, but that works very well. तू कह दो सब सही बस So we'll quickly start वो with the क्या first जैसे slide दबा के बेटा पटक रहा है ये लोग सब that talks about moneyness of the options. When we are मुझे doing नहीं पता क्या option सब strategy, we पटक know मारे that सब it can be a one leg strategy, two leg strategy. So हल्का there सा are निकाल दिया ठीक है normally strikes are divided into खुद ही three खुद things. हाथ दुखी है So there is something called at the money, in the money, and out of the वही money. आओ बोले वो So as पटक per रहा the है moneyness of that option, as per the stop, वो एक मत है आओ what is करेंगे the मारेगी spot level, नहीं आ रही according to that, where हाँ is तो the क्या क्या strike, बोल whether it is लपो ये वाला at the money, money means the strike क्या which is बोलते हैं closest to the spot level. क्या भैया तो So होगा here we have an example. It says आए that होगा spot Nifty of futures is at क्या हो रही है 18,300. So 18,300 मजाक strike नहीं वो becomes बहुत सीधा हेलो। है at the money for both call and put option. मजाक Now, दिखती क्या दिखती क्या all दिखती the strike prices above 18,300, ठीक है भैया here that will be out of the money. Why? इधर Because से the यहाँ पे strikes which are far from the spot, those are said out of the money. इधर से आओ So ही नहीं at the रहा money strike is only one, and it is same for both call and put option. उधर नहीं Out of the money strikes and in the money strikes can be multiple. अब Like नहीं में आ जाओ all the strike prices over here above 18,300 will be out of the money, and the strike prices which are making profits. For that matter, we can say 18,100. See, someone has bought 18,100 call, market is at 18,300, he is making profit of 200 points minimum. So इधर that से आ जाओ नहीं से these strikes, wherein we make profit, when we say that we are making profit, those strikes are called in the money. इधर आती गो आई हो In जानो case of put option, क्या we वो all know मारेगी that नहीं the है overall view is bearish. So strike prices which ये is तो लड़की below राजू नहीं आई हो इधर देखो कौन 18,300, बैठी that है यहाँ becomes पे out of the money. Yeah, as a put buyer, you expect market to हाँ correct. गाड़ी And if बाहर someone खड़ी has इधर bought से गाड़ी क्या 18,100 put, करेंगे बोलने का market is at 18,300, हम्म then still there is 200 points, uh, which once we see Nifty going down towards ठीक है 200 हाँ points, then only this site will make some profit. At this moment, it is far from the spot level, उधर आओगे so it उधर becomes मेरे को out बोलना of है the नहीं money. In case हम्म। of and जब all वो the बोले strike तो मैं prices above वो कर दूँ 18,300 वो आपने आप will करी हो become मुझे in the याद है। money in case of put option. वो अपनी There होता is it's a simple logic. The only thing is that you need to यार understand what is कंप्यूटर in वॉइस the मैंने money, क्या at the money, ओपन out नहीं of करा, the money, ओपन किधर and मैंने। according to the strike price, whether you're talking बैक करने what kind of option you're talking, लैपटॉप में whether it is a call option or a ना put ना पता option, नहीं accordingly सॉफ्टवेयर में you है। should be taking. Is the voice normal now? Like I have got some else said that the voice is not reachable. Uh, I hope everyone can hear me now. हिंदी प्लीज मैम ओके मैं ट्राई करूंगी कि मिक्स करूं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट दोनों ही लैंग्वेजेस जिसको भी प्रेफरेबल है दे कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स बिफोर वी स्टार्ट वी गो अहेड विद द सेकंड स्लाइड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है यू कैन पुट इट डाउन I'll try to do it in Hindi and I hope the voice is fine. Still the voice is not reachable. What is in the money, out of the money, at the money? Someone is asking. Strikes which are close to the spot price. So strike price here, spot is at 18,300. So the closest strike becomes 18,300 here. So at the money strike is the strike wherein आपको जो आपका जो स्पॉट लेवल है उसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक होगी उसे कहेंगे एट द मनी जो स्ट्राइक्स में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे कहेंगे हम इन दी मनी तो यहाँ पे इन दी मनी का स्ट्राइक कौन सा आएगा 18,100 अगर आपने बाय किया है या 18,200 की कॉल ऑप्शन आपने बाय की है दैट इज इन दी मनी स्ट्राइक राइट स्कैन कीजिए तो बताओ वो स्ट्राइक्स में आप गाड़ी प्रॉफिट लेके कमा रहे हैं अगर मार्केट ऊपर है 18,300 आपने नीचे का कॉल ऑप्शन आपके पास है तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो स्ट्राइक में तो ऐसे ऐसे केसेस में उसे कहेंगे भोपाल ही दैट आओ इज इन दी मनी स्ट्राइक ना इधर इन पे केस काम ऑफ नहीं पुट करता ऑप्शन है अगर इधर आपके पास इधर आओ 18,500 का पुट ऑप्शन है मार्केट 18,300 पे चल रहा है तो आप 200 पॉइंट्स इन दी मनी तो उसे कहेंगे इन दी मनी स्ट्राइक
जो भी स्ट्राइक्स जो Very आपको प्रॉफिट दे रहा है उसे कहेंगे इन दी मनी स्ट्राइक्स, और जो स्ट्राइक प्राइस दूर है from the spot level, that will be out of the money. So here 18,400, 18,500 becomes out of the money in case of call option, and 18,100, 18,200 becomes out of the money in case of put options. I hope ये clear है अभी. Coming to next slide, which talks about the first strategy, that is long call. अब हम पहली strategy देखेंगे जो कि long call है. Uh, लॉन्ग कॉल इज द बेसिक, लाइक आप अगर डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में, कभी भी आपको बहुत श्योर है कि आप कोई तेजी आने वाली है, या मार्केट में आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सपायरी तक, तो आप नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जहां पे आप सिर्फ एक ऑप्शन जो एट दी मनी हो गया या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी फॉर दैट मैटर, आप वो स्ट्राइक्स बाय करके ट्रेड करते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग कॉल. तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. It says that Harish believes that the stock price of ABC Limited, which is currently quoting at 100, will increase in next few days. अब Harish is bullish on the counter ABC Limited, और वो उन्हें लग रहा है कि यहाँ से तेजी आ सकती है. तो rather than buying शेयर्स, और उन्होंने कैश में इक्विटीज बाय करने से ज्यादा प्रेफर किया कि वो ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि उनका व्यू ज्यादा लंबे अवधि का नहीं है. इट इज वेरी शॉर्ट टर्म. सो ही प्रेफर्स बाइंग अ कॉल ऑप्शन. 100 की स्ट्राइक उन्होंने बाय की है, उन्होंने एट दी मनी स्ट्राइक बाय की है यहाँ पे 100 की, जिसका प्रीमियम उन्होंने भरा है ₹3. तो ये कॉल ऑप्शन फिर अभी भी आपको कोई परचेज करना होता है तो आप प्रीमियम भरते हैं. बट यही आप राइटर हो, आप सेलर हो, तो आपको जो है मार्जिन मनी भरना पड़ता है व्हेन यू आर एन ऑप्शन राइटर. दैट मस्ट बी क्लियर. लाइक अगर हम एडवांस टॉपिक करें तो आई गेस मुझे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. आई अज्यूम दैट एवरीवन इज वेल वर्स्ड विद द प्रोडक्ट. सो योर ऑन द एक्सपायरी, अगर आपका जो व्यू था, ये हरीश ही एक्सपेक्टेड दिस काउंटर टू गो अप, और उनके व्यू के हिसाब से अगर एक्सपायरी के दिन अगर ये काउंटर ऊपर चला जाता है 110 तक, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा. अभी आपकी व्यू थी बुलिश, उस हिसाब से स्टॉक में तेजी भी आई है. 110 चला गया, जो ₹100 का स्टॉक है 110 चला गया, तो ₹10 इन दी मनी हो गया ये स्ट्राइक. ₹10 जो हम हिंदी मनी बोल रहे हैं ना, जो स्ट्राइक और स्पॉट का डिफरेंस, उतना वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम हो जाएगा ऑन द एक्सपायरी डे. जैसे जैसे मार्केट में तेजी आती है वैसे वैसे कॉल्स के प्रीमियम बढ़ते जाते हैं. तो जो प्रीमियम जो ₹3 था स्टार्टिंग जब आपने ये बाई किया था स्ट्राइक 100 की, अब वो बढ़ के ₹10 हो जाता है. तो यहाँ पे आपका ₹10 का नेट नेट डिफरेंस जो है वो उसका प्रीमियम है. बट उसमें से आपकी कॉस्टिंग ₹3 थी, वो आप डिडक्ट करेंगे, जो बैलेंस बचा ₹7, दैट विल बी योर प्रॉफिट पर शेयर. तो यहाँ पे आपको ₹7 पर शेयर प्रॉफिट है. अब कॉल ऑप्शन में अगर ये स्टॉक और तेजी करता है, अगर 120 चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. जो कॉल का प्रीमियम 3 था वो अब 20 हो जाएगा. 20 में से ₹3 का आपका कॉस्टिंग है वो डिडक्ट हो जाएगा. ₹17 जो बचता है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. उधर ये काउंटर 120 चला गया. अब सपोज ये काउंटर नीचे चला जाता है तो 100 से 100 से वो 90 चला गया. अब 10 पॉइंट्स नीचे चला गया तो आपको कितना लॉस होगा इसमें. अगर आपने कैश में या फ्यूचर्स में सेल किया होता 100 के भाव में, और अगर वो स्टॉक नीचे 90 पे आ जाता है, तो आपको ₹10 का लॉस होता है हर शेयर पे, राइट. बट यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो ऑप्शन जब भी आप बाइंग करते हो, आप कोई भी ऑप्शंस को लॉन्ग करते हैं, तो ऑप्शन से जो प्रीमियम है, जितना आपने प्रीमियम भरा है, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता. तो वेदर इज दिस काउंटर इज 10 पॉइंट्स डाउन, बट जो आपका नेट आउटफ्लो था दैट इज ₹3, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा. तो यहाँ पे डिस्पाइट स्टॉक इज डाउन बाय 10 पॉइंट्स, योर मैक्सिमम लॉस विल बी ₹3. इफ इट गोज डाउन 20, लाइक 20 पॉइंट्स और नीचे चला गया, 80 पे चला गया, स्टिल आपका जो लॉस है दैट विल बी ₹3. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस. एज ऑप्शन बायर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, क्योंकि जैसे जैसे तेजी होती है वैसे वैसे कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे. बट अगर स्टॉक करेक्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो आपका नुकसान जो है दैट विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम विच यू हैव पेड. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज अ बेरिश स्ट्रैटेजी, लॉन्ग पुट है. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हरीश बिलीव्स दैट द स्टॉक प्राइस एबीसी लिमिटेड will decrease in next few session. Now he expects that कि ये स्टॉक करेक्ट होगा कुछ दिनों में, तो उन्होंने फ्यूचर सेल करने से बेटर उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय करना प्रेफर किया.
उन्होंने 100 की पुट बाय की है फॉर द प्रीमियम ऑफ ₹4, और ₹4 के प्रीमियम उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय किया। तो पुट ऑप्शंस बाय करना मतलब आप मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो ये पुट के जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएंगे, राइट। तो अगर एक्सपायरी डे पर एज पर हिज व्यू स्टॉक चला जाता है 90, ₹10 नीचे चला गया, तो एक पुट ऑप्शन जो ₹4 पे ट्रेड करा था उसका प्रीमियम अब ₹10 हो जाएगा। स्ट्राइक और स्पॉट का डिफरेंस ले लेंगे तो ₹10 है, ₹10 का पुट का प्रीमियम हो जाएगा, उसमें से ₹4 की आपकी कॉस्टिंग थी, वो डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा दैट विल बी तो आप फंसी होता है ये तो बे डब्बा करने में थोड़ी लिखा रही है बात दैट विल बी योर प्रॉफिट पर शेयर। एड्रेस ना थे इसी अच्छा तरह अगर वो और नीचे जाता है तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, बट अपसाइड अगर नीचे जाने की जगह ऊपर चला जाता है तो ये स्टॉक में आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो ₹4 का होगा, उससे ज्यादा नहीं। डिस्पाइट अगर ये स्टॉक 100 से 110 चला जाए, 115 चला जाए, तो भी आपका लॉस विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम ऑफ ₹4। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जो मैंने मिस किया लास्ट स्ट्रैटेजी में। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेर आपको ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। तो अगर आपने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है 100 का, अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है 100 का 96 चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? इट विल बी जीरो, बिकॉज पुट का जो वैल्यू है वो ₹4 ही रहेगा। 96 गया, स्पॉट और स्ट्राइक का डिफरेंस क्या है? ₹4, और ₹4 तो आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग करी थी ये बाय करने के लिए। तो at that level you will nor make any profit nor any losses, so that is called break even point। तो यहाँ पे 96 का break even point होगा। और इन केस ऑफ प्रीवियस एग्जांपल अगर हम लेंगे, जहाँ पे हमने लॉन्ग कॉल किया था, तो 100 की कॉल में आपने ₹3 का प्रीमियम भरा था, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 100 प्लस 3, दैट कम्स टू 103। तो 103 के ऊपर जाने पर ही आपको प्रॉफिट होगा, 103 पे क्लोजिंग आता है तो आपको ना प्रॉफिट ना नुकसान होगा, राइट। आई होप ये ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो हमने एक बुलिश स्ट्रैटेजी देखी, हमने बेरिश स्ट्रैटेजी देखी। अब ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको लगता है कि तेजी होगी, बट आपको बहुत वन साइड तेजी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कुछ लेवल तक आ सकता है, इफ यू हैव पर्टिकुलर लेवल इन योर माइंड। तो ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? हम बुल कॉल स्प्रेड करते हैं, विच इज अ मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी। In this, you buy one at the money call option and sell one out of the money call option। तो ये टू लेग स्ट्रैटेजी है, अनलाइक द प्रीवियस वन वेर हमने एक ही स्ट्राइक में ट्रेड किया था। यहाँ पे दो स्ट्राइक्स में आपको ट्रेड करना है। आपको एक स्ट्राइक में एक जो कॉल ऑप्शन बाय करनी है एट दी मनी की, और साथ ही साथ आपको सेल करना है आउट ऑफ द मनी की कॉल की स्ट्राइक। whenever you do this kind of a two leg strategy, there are few things जो आपको ध्यान रखनी है। पहले कि स्ट्राइक प्राइस जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सेम अंडरलाइन का होना चाहिए, जो भी आप स्ट्राइक्स ले रहे हैं वो सेम अंडरलाइन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिलायंस बाय किया, टीसीएस सेल कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप कोई भी बुल कॉल स्ट्रैटेजी कर रहे हो, दैट इज एप्लीकेबल फॉर वन पर्टिकुलर काउंटर। तो आप अगर रिलायंस में करो तो आपका जो एट दी मनी बाय कर रहे हो या आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हो, दैट विल बी सेम स्क्रिप्ट। एक्सपायरी, अब जब एक्सपायरी भी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको सेम एक्सपायरी का में ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आप फेब का सीरीज बाय कर रहे हो, मार्च का सेल करना है। एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए, अंडरलाइन सेम होना चाहिए, एक्सपायरी सेम होना चाहिए। इसके अलावा क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करके कि आपने 10 लॉट कॉल ऑप्शन बाय किया है, 5 ही सेल कर रहे हैं। जो क्वांटिटी भी में भी आप ट्रेड करोगे वो भी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजीज करते हैं, दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। आपको ये दोनों भी ट्रेड साथ में डालने हैं। ऐसा नहीं करके कि आपने ये अभी डाला, बाइंग कर दिया है, कॉल ऑप्शन सेल करना है, वो आप रुके हो कि मुझे कुछ लेवल्स में यही लेवल्स पे सेल करूँ। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। तो स्ट्रैटेजी जब भी आप कर रहे हैं तो आयुन इट शुड बी एक्सिक्यूटेड साइमल्टेनियसली। छोरा अरविंद के बारे केन गन कमिंग टू एन एग्जाम्पल, अब करे यहाँ पे आप बांध देख की रहे हैं करे क्योंकि वामोरा टाक दिया दीना का करे जो हमारा व्यू है दैट इज मतलब नाक नहीं मॉडरेटली जा रही बुलिश, अब वी एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर, कदी का बट द एक्सपायरी इज अराउंड द कॉर्नर विच कुड लिमिट द अपसाइड। अब हमें पता है कि हम जब भी एफएनओ वास्ते में ट्रेड बोल कर रहे हैं, रहे इट थे इज हर सीरीज एक्सपायर होता है। वीवान तो एक्सपायरी है, कदी का हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उस का लिमिटेड टाइम में आपको लग रहा है करके कि हाँ ज्यादा अपसाइड नहीं आएगा अजू क्योंकि हमारे पास हार जी टाइम ने कम जाए है। लिए तो तो
वो वो रीजन से हमारा भी पास आ कभी गए तो कभी ऐसा होता है करके कि आप वे उतने बोले टाइम फ्रेम में इतना ज्यादा आप मूव नहीं एक्सपेक्ट कर अरे रहे, कोई तो कोनी आप ये वे स्ट्रैटेजी हवाला कर पास सकते आ हैं। गए जहाँ पे बेनिफिट क्या होता है इस स्ट्रैटेजी का, विल डिस्कस इन वंस वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडो तो मुख्य का क्या कहो यार सो हमें एट दी मनी तो स्ट्राइक यहाँ पन्नी पे चेक अगर करो मेंशन किया गया कि स्पॉट निफ्टी 18,300 पे, तो एट दी मनी स्ट्राइक सब हो गया यार 18,300। और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक कौन सा रहेगा, जो भी 18,300 की स्ट्राइक के ऊपर होगी वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 18,500 की कॉल को शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप कॉल जब बाय कर रहे हो उसके लिए आप प्रीमियम भर रहे हो 100 रुपीज, और आप सेल करोगे उसमें आपको प्रीमियम इनफ्लो है, जहाँ पे आपको 50 रुपीज आपका वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो आपका इनफ्लो है। तो जब भी आपको नेट कॉस्टिंग निकालनी है तब क्या होगा, आपको 100 - 50 करना है, तो 50 रुपीज की ही आपकी कॉस्टिंग है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग अ बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। आप बुलिश ट्रेड तो कर रहे हैं बट आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है। आपका जो इधर प्रॉफिट पोटेंशियल है वो तो लिमिट होता है, बट इधर लॉसेस भी लिमिटेड रहते हैं। तो इधर प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड रहते हैं, बट ये बेनिफिट होता है कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, जिसके कारण आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी नीचे आ जाता है। ये स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल क्या होगा, जो दोनों भी स्ट्राइक लिए हैं उस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 18,500 18,300 डिफरेंस हो गया 200 पॉइंट्स। उसमें से आपकी जो कॉस्टिंग थी वो 50 रुपए, वो आप डिडक्ट करेंगे। तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा दैट इज 200 - 50, दैट कम्स टू 150। तो 150 विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट इवन द स्टॉक गोज एट वॉट एवर लेवल्स अबव 18,500। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 18,500 पे लेवल पे आएगा, बट इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो साइड को सेल किया है। तो आपका जो अपसाइड पोटेंशियल है, प्रॉफिट पोटेंशियल, दैट इज कैप्ड। बट हम ये स्ट्रैटेजी क्यों करते हैं, ताकि आपको लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं है, तब आप ये स्ट्रैटेजी करते हैं। मैक्सिमम लॉस क्या होगा इसमें, जो आपका नेट प्रीमियम आउटगो है वो आपका मैक्सिमम लॉस है अगर स्टॉक नीचे जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हमने लॉन्ग कॉल में ब्रेक इवन पॉइंट लिखा था, उसी तरह यहाँ पे भी करना है हमें। एट दी मनी स्ट्राइक में नेट प्रीमियम ऐड करना है। तो एट दी मनी स्ट्राइक वाज 18,300 प्लस 50, तो 18,350 बिकम्स योर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बॉय किया होता तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, आपने अगर एट दी मनी 18,300 की 100 रुपए के प्रीमियम में बाई किया होता, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता 18,300 प्लस 100, दैट वुड बी 18,400। तो अगर आपको प्रॉफिट आना है ये स्ट्रैटेजी में, तो आपको 18,400 के ऊपर जाएगा तभी ही आपको प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे। बट यहाँ पे बिकॉज जब कॉस्टिंग हैज क्या रिड्यूस्ड, करना माता जी आपका री जो थी ने प्रॉफिट रे है वो आपको लक्ष्मी देवी 18,350 के ऊपर जाते ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। So this is the benefit of doing a bull call spread. तो ऐसा हमेशा ही नहीं होता कि आप वो सीरीज में एक वन साइड ही मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो। देयर मस्ट बी अ सम हर्डल, तो आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा तेजी नहीं आएगी, तो आप वो केस में ये टाइप की स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। Now next strategy is barefoot spread. This is a moderately bullish bearish strategy. अगर हमने जैसे लॉन्ग कॉल बुल कॉल देखा उसी तरह ये चीज है, बट इट्स अ बेरिश स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आपको भी एट दी मनी की पुट बाय करनी है, साथ में आउट ऑफ दी मनी की पुट सेल करनी है। जो हमने चीजें डिस्कस की लास्ट स्ट्रैटेजी में कि कुछ चीजें आपको जो टू लेग स्ट्रैटेजीज करते तो ध्यान रखें, वो चीज आपको फिर से रिपीट नहीं करूंगी, बट वो सारी चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल है बिकॉज इट इज अ टू लेग स्ट्रैटेजी। Your outlook is moderately bullish. You expect market to go down, but expiry is around the corner, which could limit the downside. इसको यहाँ पे अपन एक्सपायरी वो तो पास क्या में है, बात इसकी वजह से आप ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि इस लेवल कॉमेडी तक यहाँ से करेक्शन आ सकता है। स्पॉट निफ्टी इज 18,300, तो आप एट दी मनी की स्ट्राइक बाय करेंगे तो एट दी मनी विल बी 18,300 का पुट, और आउट ऑफ दी मनी लेना है तो यहाँ पे 18,100 की पुट को शॉर्ट किया गया है। तो आपने प्रीमियम भरा है 150, उसमें से नेट प्रीमियम आपको जो प्रीमियम आया है इनफ्लो है दैट इज 90। सो आपकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे 60, 150 - 90 दैट कम्स टू 60। 60 की आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग है। वेट लॉस करो मेरे को बेटा कन्नो की मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपको स्ट्रैटेजी में क्या होगा, दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस दैट इज 200 पॉइंट्स माइनस 60, that comes to 140. So 140 is your maximum profit in this particular strategy. Despite stock 18,100 के नीचे चला जाता है, तभी भी आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऐसे विल बी मिला तो लिमिटेड टू अभी फाइल में 140 रुपीज।
मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो आपका नेट आउटफ्लो है वही मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे 60 रुपए का जो है नेट आउटफ्लो था आपका, वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा अगर ये काउंटर ऊपर चला जाता है तो। तो कुछ याद है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जो आपको एट द मनी में माइनस करना है नेट आउटफ्लो। तो 68 तो ना लास्ट टाइम तो ना 18,300 minus 60, that comes to 18,240, that becomes your break even point over here। 68.4 kg। तो हमने चार स्ट्रैटेजी देखे, हमने दो बुलिश स्ट्रैटेजी देखे। वन वाज लॉन्ग कॉल, सेकंड वन वाज बुल कॉल स्प्रेड व्हिच वाज अ मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी। यहाँ पे फिर दूसरे स्ट्रैटेजी हमने किया बेरिश स्ट्रैटेजी व्हिच वाज लॉन्ग पुट, और मॉडरेटली बेरिश स्ट्रैटेजी किया व्हिच इज बेयर पुट स्प्रेड। हमने चार स्ट्रैटेजीज कवर किया है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, अब ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आपको कभी कभी लगता है कि मार्केट में बहुत वन डायरेक्शनल मूव आएगा, कि कुछ आउटकम है, कुछ समथिंग, कुछ न्यूज आने वाला है या बजट आने वाला है, आपको नहीं पता कि क्या आएगा, बट आपको ये लग रहा है कि वन साइड की मूव आ सकती है। यू आर नॉट श्योर ऑन द डायरेक्शन, बट आपको मोमेंटम लग रहा है वन साइड। तो वैसे में आप एक स्ट्रैटेजी कर सकते हैं जिसे कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। आपका इधर प्रॉफिट या लॉस किस तरफ जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि वो किधर भी जाए बट मोमेंटम शार्प रहने चाहिए, तब आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। तो 57.3। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एट दी मनी की कॉल और पुट दोनों भी बाई करते हैं। अब दिस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट। जब हमने लॉन्ग कॉल और हाई लॉन्ग बात पुट है क्या भाई देखा था, बजट वही का बजट बोल रहे कॉम्बिनेशन है ये। बन की यहाँ पे आपका आउटलुक क्या है, यू एक्सपेक्ट डायरेक्शनल मूव इन द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शनल मूव लग रहा है बट यू आर नॉट श्योर ऑन द डायरेक्शन। सही बोलते हैं ये लोग। स्पॉट निफ्टी 18,300 पे है, तो आप एट दी मनी की कॉल आप पुट दोनों को अरे बाय जो कर रहे हैं बचान यहाँ पे। कन्नो गया तो ब्रदर। 18,300 की कॉल आप बाय कर रहे हैं फॉर द प्रीमियम ऑफ ₹100, और मैंने 18,300 की पुट बाय कर रहे हैं फॉर द प्रीमियम ऑफ ₹140। तो टोटल आउटफ्लो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों भी स्ट्राइक में बाइंग करें। लास्ट दो स्ट्रैटेजीज हमने की, कन्नो ने उसमें आप मुंडी आउट ऑफ द मनी को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों भी स्ट्राइक में लॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका जो नेट आउटफ्लो है उसके लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों में आपको घर तो प्रीमियम भरना हाँ है। हाँ खुना मत तो यहाँ पे आपका जो टोटल आउटफ्लो हाँ विल बी और क्या अंदर 240, एक बार बियर एडिंग बोथ दी हाँ प्रीमियम्स। हाँ अच्छा ठीक है मैक्सिमम प्रॉफिट पॉज पोटेंशियल करी इज પછી જો अनलिमिटेड। કલેક્શન બીજું કરે કરા जिधर भी जो પહેલા साइड में કલેક્શન मूव आते કરાય जाएगा वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम लॉस इज द प्रीमियम विच यू हैव पेड। आपने થોડે प्रीमियम टू ઘણે फोर्टी ડાયરી रुपीज ભાઈ भरा है, બતાવી तो वो आपका પ્રોફિટ मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अपर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर ब्रेक इवन, बिकॉज वी आर डूइंग टू लाइक स्ट्रैटेजी। एक कॉल है एक पुट है, तो यहाँ पे आपको दो ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे। फर्स्ट इज अपर ब्रेक इवन पॉइंट विच इज एट दी मनी प्लस नेट प्रीमियम। तो एट दी मनी स्ट्राइक हमने बाई की 18,300 प्लस 240, दैट कम्स टू હા 18,540, તો अच्छा विच इज एन अपर ब्रेक इवन पॉइंट। और लोअर कसल ब्रेक पेमेंट इवन पॉइंट इज 18,300 minus 240, that देखा comes ले to 18,060। तो ये जो रेंज है, तो इसके एक काम ऊपर करना या खेला इसके और नीचे आप वोटिंग एक्सपेक्ट कर रहे करने हो कि जाना निफ्टी मूव करेगा, तभी ही आप ये स्ट्रैटेजी करें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, पहुंचना इस तरह के चाहिए आप टोटल प्रीमियम ले, ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, आपको लग रहा है कि ये रेंज के बाहर की मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी ही आप ये स्ट्रैटेजी करें, नहीं तो अवॉइड करें। इसके अलावा आप ये भी देखेगा कि एकदम हाई आईवीज पे आप ये स्ट्रैटेजी ना करें, बिकॉज आप एकदम हाई आईवीज पे आपने किया मतलब प्रीमियम एक्सपेंसिव रहेंगे। यो उस एक्सपेंसिव प्रीमियम में आप जब बाइंग करेंगे, और बिकॉज इवेंट खत्म होने के आसपास या इसके बाद अगर आप आईवीज क्यों को मैं पुल करे ऑफ क्यों नहीं होते हुए देता देखेंगे, तो डिस्पाइट स्टॉक में कोई खास मूव नहीं है, प्रीमियम घट जाएंगे और आपको लॉस आखिरी होना वाला शुरू हो जाएगा। साइकिल महंगी बेची क्या आप तुम लॉस क्या था पता आपको लॉस होगा इन दैट केस। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, दोनों साइकिल भी ने स्ट्राइक आप महंगी बाय करके चल रहे हैं, तो प्रीमियम जो आईवीज है वो बहुत ही ऊपर ना रहे, उड़ता मर्सिडीज नीचे साइकिल रहे, या ओवरऑल एक रेंज में आप नीचे की तरफ है तो ठीक। इवन इसके पहले नॉर्मली आईवीज शूट अप हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब भी आईवीज नॉर्मल लेवल्स पे है, तभी ही आप ये स्ट्रैटेजी को कर ले। स्पेशली ऑन द इवेंट के दिन आप एक दिन उसी दिन करेंगे। अगर इवेंट का आउटकम है 11 बजे, आप मॉर्निंग में 9 बजे या 9:30 को आप पोजीशन ले रहे हैं, तो आप हाई आईवीज पे बाय करें, तो वैसे अवॉइड करें। The last but not the least is short straddle, which is a
रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, काफी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ही चॉपी हो जाता है। जैसे लास्ट 2 दिन आपने देखा, मंडे के दिन काफी शार्प फॉल आया, ट्यूसडे के दिन उतना ही रिकवरी आई, और ये 2 दिन से मार्केट काफी रेंज बाउंड हो गया है। तो ऐसे रेंज बाउंड मार्केट के लिए भी प्ले करने के लिए वी हैव अ स्ट्रैटेजी विच इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैडल। यहाँ पे आपका जब क्या व्यू होता है कि आप एक्सपेक्ट करोगे एक रेंज में ही इंडेक्स ट्रेड करेगा, तब आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे, स्पॉट निफ्टी 18,300 पे है, आप एट दी मनी की कॉल और पुट यहाँ पे दोनों को सेल करते हैं। प्रीवियस स्ट्रैटेजीज में आप बाय कर रहे थे, यहाँ पे आपको दोनों भी सेल कर रहे हो, तो जो भी आप सेल कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम आ रहा है, तो टोटल प्रीमियम जो भी है ये आपको नेट प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे 100 प्लस 140 दैट इज 240 इज योर नेट इनफ्लो, राइट। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई भी चीज बेचते हैं 100 रुपए पे, तब ज्यादा से ज्यादा उसको जीरो फ्री में उठाएंगे, उससे ज्यादा तो आप नहीं बाय कर सकते, उससे कम में तो 100 इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर आप जब भी रहते हो, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम विच यू आर सेलिंग, एट व्हाट प्रीमियम आर सेलिंग दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने जो दोनों स्ट्राइक सेल किया है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी द प्रीमियम विच यू एट व्हाट यू हैव सोल्ड, दैट इज 240 ओवर ईयर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 240, मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। अगर ये स्टॉक में आप एक्सपेक्ट करते हैं रेंज वन, बट इसमें एक शार्प मूव आ गई, तो आपको लॉसेस बढ़ते जाएंगे, एंड जैसे जैसे स्टॉक चलता जाएगा वैसे आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि लॉसेस अनलिमिटेड है। अपर प्राइस बैंड, अगेन जो प्राइस बैंड हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने पिछले स्ट्रैटेजीज में देखी थी, वही चीज है यहाँ पे। तो इसे कहेंगे प्राइस बैंड, जहाँ पे ये आपको एक रेंज बताता है। तो यहाँ पे आप रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे जो 18,540 18,060, ये रेंज है। अगर आप ये रेंज के अंदर ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोमेंटम रहेगा, तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल करें। अगर आपको लग रहा है कि इससे ऊपर मूव आ सकता है, तो आप अवॉइड करें। आप ऑप्शन राइटर हो तब आप हाई प्रीमियम्स में सेल करके चलोगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। क्योंकि स्टॉक में अगर एवरीडे आप सिर्फ होल्ड भी करते हैं, मार्केट में मूव नहीं भी आता है, तभी भी प्रीमियम एवरीडे इरोड होएगा, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। प्लस अगर आपने हाई आईवीज पे सेल किया है, तो आईवीज कूल ऑफ होंगे, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉफिट्स आएंगे। तो दैट कैन गिव यू एन एडवांटेज इन टू वे, डबल साइड से आपको एडवांटेज हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट स्ट्रैटेजी। अब आप स्पेशली एक्सपायरी डे के लिए ट्रेड करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आप किस तरह से ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस हमें ट्रैक करनी है, वो काफी आपको हेल्प करेगा अगर आप कोई स्ट्रैटेजीज करें या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस करने के ऊपर भी कुछ कुछ वेबिनार्स है, आप उसे अटेंड करें। आप एफ की पोजिशन ट्रैक करें, एफ क्या करें, बिकॉज उनके पोजिशनिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और उससे अगर आप ट्रैक करें, तो आपको ओवरऑल आइडिया है कि वो लोग कैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक रिकैप कर लेंगे जो स्ट्रैटेजीज हमने किया। बुलिश स्ट्रैटेजी विच इज लॉन्ग कॉल, यहाँ पे आपको नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। लॉन्ग पुट, नेकेड पुट ऑप्शंस बाय करेंगे उसे कहेंगे लॉन्ग पुट। बेरिश है, आपको लग रहा है वन साइड करेक्शन आएगा, तो आप लॉन्ग पुट कर सकते हैं। आपका मॉडरेटली बुलिश व्यू है, तो आप बुल कॉल स्प्रेड करें। मॉडरेटली बेरिश व्यू है, तो आप बेर पुट स्प्रेड करें। रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट, तो शॉर्ट स्ट्रैडल करें। और आप मार्केट में वन साइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग स्ट्रैडल करें। दीज वर ऑल 6। काफी लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं करके कि उन्हें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। तो आई प्रिज्यूम कि आप बहुत न्यू हैं, आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पर अभी हैं इनटू ऑप्शंस। तो आई आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले तो ऑप्शंस क्या है उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए वेबिनार अटेंड करें। उसके लिए भी वी हैव वेबिनार, एक ऑप्शंस इन डिटेल कैसे कोई वेबिनार रहेंगे, तो आप उसको एनरोल करें, तभी आपको समझेगा। सीई स्टैंड्स फॉर कॉल एंड पीई स्टैंड्स फॉर पुट। तो सीई अगर आप कहीं भी देखते हैं कि बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, आप रिलायंस का 1000 का सीई का स्ट्राइक बाय करो, तो 1000 का कॉल हो गया। जब भी आप सीई देख रहे हैं दैट इज कॉल, एंड पीई देख रहे हैं तो दैट इज पुट ऑप्शन। Someone was asking that also. Someone is asking how do we get to know कि प्राइस अप होंगे या डाउन। अभी सी दिस इज अगेन अ व्यू, लाइक आप अगर अपने रिसर्चेस करते हैं,
आपका कोई व्यू है ये तो उसके ऊपर मैं बात किया गया। मार ये तो तो वंस यू गेट लाइक आप थोड़ा मार्केट में तब ऑब्जर्व करेंगे, आप इधर ही अपने खुद की हॉलीडे रिसर्च करें तो आपको थोड़ा हाँ इससे और हेल्प हो कावड़े जाता रे है। पूजा वागे भाई बिल्ले नहीं है रे भाई मला तो बिल्ले यार है ये अल्लाह में वो कि आई सिंपल अज्यूम लाइक अगर आप पहली बार ये स्ट्रैटेजीज के बारे में सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स वन लेक्चर्स ये फर्स्ट एक वेबिनार से आपको पूरा आ जाएगा ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए और रीडिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजीज के लिए एनएससी की साइट पर आपको स्ट्रैटेजी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज के ऊपर पूरी बुक्स है, तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स स्ट्रैटेजीज वहाँ पे मिल जाएंगे। बट एप्लीका कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप जैसे आप कुछ व्यू फॉर्म कर रहे हैं, आप वो स्ट्रैटेजी को लिखे, उसके प्रीमियम को कौन से लेवल से बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं वो लिखे। बुक में जो ट्रेडिंग करते हैं हम बोलते हैं उस तरह की आप स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करें, तभी आपको इसका ओवरऑल समझेगा। बिकॉज इसका पे ऑफ इतना इजी नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को। तो इट विल नॉट हैपन इन अ सिंगल वेबिनार, यू नीड टू प्रैक्टिस, then only you will get a hang on it. It is not a very simple topic. आप वेबसाइट पे ही अगर गूगल पे ही डालेंगे कि डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज तो आपको काफी सारे वहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, यू कैन रेफर दोस। Muy estaba na pan bu ba. Someone is asking, can you show the first slide? This was the first slide. कौन बात कर के याद है भाई ठीक है Someone is asking for the numbers. नाइन डबल जीरो You can contact the advisory if these guys are can help you वन out, सेवन because normally सारे calls related to product, we also have a derivatives और related, रखेंगे अगर कोई ज़्यादा product के लिए आपको knowledge चाहिए तो उसके लिए भी कुछ आठ नंबर teams है, तो आप उधर डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात फोर कर। एट नाइन डबल जीरो वन सेवन हिंदी में JEAN हिंदी में मैं The webinars conducted over here is from Angel एजेंट One. कहता काम है It's the in-house, so कोई एजेंट बाहर का webinar नहीं conduct कर रहा है कोई। J.E.N. ये सेव किधर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं लगता है। इन दैट केस आपको बस एफ एक्टिवेट करवाना रहेगा। सब जगह तक पे वो चीज़ आप अपने सब ब्रोकर से बात करें, दैट विल हेल्प यू। अभी भी आई जो मैं जवाब दिए सुई देता कौन तो वॉक कर दे आपको ऑर्डर्स के रिलेटेड भी आपको सब जानना है तो आई थिंक कंप्लाइंस टीम हो गया, वो सब टीम्स आपको हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मतलब लाइक आपको अगर जिस वेबिनार में हमने कंडक्ट किया है जो स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज उसके लिए क्वेश्चंस करें, आई विल बी एबल टू हेल्प यू फॉर दैट। बट अगर आपको कुछ जैसे आपको बास्केट ट्रेडिंग करनी है, आपको ग्रुप में कैसे डालना है, वो चीज सब चीजें आप अपने सब ब्रोकर्स के थ्रू आप जान पाएंगे। तो इंट्राडे के लिए भी है देयर इज स्ट्रैटेजी, लाइक अगर आप कभी आपका ओवरऑल व्यू क्या है, जैसे आपका व्यू कैन बी इंट्राडे ऑल्सो, इट कैन बी फॉर अ वीक ऑल्सो, इट कैन बी फॉर अ मंथ ऑल्सो। आपको निफ्टी लगता है आज के दिन कुछ मूव नहीं करेगा तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल आज के दिन भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ प्रीमियम खाने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि इंट्राडे के लिए आप यही स्पेसिफिक करें या ऐसे मार्केट के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो आप यही स्ट्रैटेजी करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यू, मार्केट कैसा है, आपका व्यू क्या है, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, आप अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करना है। So we have tried covering as many topic, as many questions we could. So अभी के लिए we can wind up the session. Thank you everyone. Thank you for so much questions. I assume that आपने जो भी हमें डिस्कस किया that would have helped you. But I would suggest अगर आपको डेली रिपोर्ट्स जैसे आपको स्ट्रैटेजीज में इंटरेस्ट है तो कीप रीडिंग more stuff, do book trading, that will help you out. Don't go and initially start reading before having a proper knowledge. अगर आपको डेली क्या व्यू है ये सब चीजें रीड करना है तो आप डेली रिपोर्ट्स को रेफर करें जहाँ पे हम हमारा क्या व्यू है ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो उधर आपको व्यू में हम किस तरह से एनालिसिस करके क्या व्यू है हम मेंशन करते हैं। उधर आपको ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप्स भी दिखते हैं, ओपन इंटरेस्ट गेनर्स लूजर्स वो सब भी डिटेल्स रहता है, एफआईज का डेटा रहता है। तो काफी सारे कंटेंट आपको डेली रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। You can prefer you can just opt for reading it once every day so that आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे।
So for now, we can wind up this session. Thank you, everyone. Thank you for joining. Stay safe.